Good morning, dear students. How are you all? Welcome back to my channel, The Achievers Education. Today onwards, we'll be starting with the geography chapters, and today's first chapter is resources and development. And this is the part 1 of class 10th geography. Let us go ahead and understand what is the meaning of resource and several other things which are there in this chapter. So talking about first what is the meaning of a resource in general. In general में resources का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे. Something which we can use is called as a resource. ऐसी कोई चीज जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे काम आ सकती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स. सो और ऐसे कौन से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती है, जैसे पानी, एयर, है ना, वाटर. All right, so these are the different things which we can use it. Okay, so anything which can be used, which you can use it, that can be called as a resource. Second, let us also understand the standard definition of resource. All right, so everything in our environment which can be used to satisfy our needs, provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. वो सारी चीजें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो और वो टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग उससे एक्सेस कर पाए, है ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उससे निकाल पाए, इकोनॉमिकली हमारे लिए वो फीजेबल भी होना चाहिए, मतलब एकदम ज़्यादा महंगा भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम कल्चरली एक्सेप्टेबल, समाज उसकी परमिशन भी देना चाहिए कि उसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं. ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, all those things which satisfy your needs. Okay, all those things which satisfy our human needs, provided they are technologically accessible, हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे निकाल सके, इकोनॉमिकली फीजेबल, इकोनॉमिकली मतलब हमारे लिए वो अफोर्डेबल भी हो, है ना, एकदम ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना चाहिए, मतलब एकदम ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, समाज भी उस चीज़ की परमिशन देता हो. such kind of things can be called as a resource. Now also understand the meaning of development. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप. इन सिंपल वर्ड्स इफ आई हैव टू से, है ना, पहले से थोड़ा सा बेहतर हो जाना, है ना, इज कैन बी नथिंग बट कॉल्ड एज डेवलपमेंट. ठीक है, पहले से थोड़ा सा बेहतर हो जाना कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट. लेट अस नाउ टॉक अबाउट resources. All right, now we'll be also talking about division of resources. हम लोग ने थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा हमें कि हमने resources का मतलब तो हम लोग समझ गए, अभी हमें जो resources का division किया गया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे resources है, अलग अलग प्रकार के resources है, and therefore we have to categorize them in different categories. So let us understand the division of resources which is there in your exam, which is there in your textbook. All right, let us understand. So very first division which we have made is on the basis of the origin. ओरिजिन के आधार पर, कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसके आधार पर भी हम लोगों ने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है. दैट इज डिवाइडेड इनटू बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. अबाउट दिस टू डेफिनेशंस यू नो इट वेरी वेल, यू हैव बीन लर्निंग दिस फ्रॉम क्लास 5th onwards. Let us read it once again. Resources, those resources which are obtained from biosphere and have life, example humans, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. are called as biotic resources. So वो सारी चीजें जो जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर लाइफ है, okay, that can be called as a biotic resources. Humans, है ना, flora का मतलब होता है सारे के सारे plants, trees. Fauna, it includes all the animals. Fisheries, livestock, etc. Livestock again is nothing but the cattle and so on, है ना, गाय, भेड़, बकरी, ये सब हमारे क्या है? लाइफ स्टॉक है. सिमिलरली बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स, कोल्स एक्सेट्रा. वो सारी चीजें जिसके अंदर जीवन नहीं है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ एबायोटिक रिसोर्स, जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स, कोल्स, मगर ये हमारे काम जरूर आती है, राइट. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स. Examples are here, you can see plants, animals, fungus, bacteria, living things, therefore it is biotic. Water, soil, air, minerals, light. Okay, this is non-living thing, do not have any life, but they are of course useful to us. Second thing, on the basis of exhaustibility. Okay, कितने जल्दी खत्म होते हैं उनके आधार पर भी हम लोगों ने resources को divide किया है. That is divided into renewable resources and non-renewable resources. Simple definition if I have to give it to you, those resources which can be reproduced or regenerated can be called as a renewable resources by the physical, mechanical और chemical process, जैसे कि solar, wind, forest etc. वो सारी चीजें जिनको हम बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, that can be called as a renewable resources. Similarly, non-renewable resources are those resources which take millions of years to reproduce or they get exhausted
खत्म हो जाते हैं ऑन बाय वन टाइम यूज. ओके, वो सारी रिसोर्सेज जो खत्म हो जाते हैं बाय वन टाइम यूज और बाय एक्सेसिव यूज ऑफ इट, ओके, दो रिसोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जांपल कोल, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल एक्सेट्रा. ये एक बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में हमें फिर से उसको हम रीजनरेट नहीं कर पाते हैं. जो हमारे पास में उसमें से हम लोग और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. राइट, मूविंग फॉरवर्ड एज यू कैन सी द एग्जांपल्स हियर. राइट, या moving forward now on the now third is also we have on the basis of development. Okay, सबसे पहले हमने देखा था on the basis of origin, दूसरी बार हम लोगों ने देखा था on the basis of exhaustibility, और तीसरी चीज अभी हम लोग देख रहे हैं on the basis of development. डेवलपमेंट के आधार पर, प्रगति के आधार पर भी हम लोगों ने कुछ रिसोर्सेज को हम लोगों ने डिवाइड किया. द वेरी फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. आपको टर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल, क्षमता, है ना. ऑल दोज रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन द रीजन व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई द human needs, but their utilization has not been started because of technology is very expensive. For example, Gujarat and Rajasthan have good potential energy to generate solar and wind energy. वो सारी रिसोर्सेज जिसके अंदर में क्षमता है, जिसके अंदर में ताकत है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है. मतलब हमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है उस टेक्नोलॉजी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था गुजरात और राजस्थान का. यहाँ पे गर्मी और हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, विंड भी काफी तेज तरीके से चलती है. सो हम लोग उस चीज को हम लोग बहुत सही तरीके से एज अ रिसोर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उतनी सारी रिसोर्सेज को उतनी रिसोर्सेज को के द्वारा हम लोग को एनर्जी जनरेट करना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है. महंगा इन द सेंस ऑफ बहुत कॉस्टली है. ओके, उसका प्लांट सेटअप करना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है और बहुत कॉस्टली भी है. यूरेनियम इन लद्दाख ऑल्सो. लद्दाख भी यूरेनियम से भरपूर पड़ा हुआ है, मगर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हमें पैसा लगने वाला है वो बहुत ज्यादा है, जो कि हम लोग अफोर्ड अभी कर नहीं सकते एट द मोमेंट. अगेन नेक्स्ट थिंग, डेवलप्ड रिसोर्सेज. अभी डेवलप्ड रिसोर्सेज किनको बोलते हैं? दोज रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. दे आर करंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस. एग्जांपल कोल, वुड. वो सारी रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब वो होता है कि ये वो सारी रिसोर्सेज है जिनके बारे में हमें सब कुछ पता होता है दरअसल, कि कितने क्वांटिटी में है और कौन सी क्वालिटी का है हमारे पास में ये रिसोर्स, और हमारे पास जो एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम इसे निकाल भी सकते हैं. दोज रिसोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज अ डेवलप्ड रिसोर्सेज. एग्जांपल कोल एंड वुड. कोल हमें इस कोल को हम लोग कोल का जब हम लोगों ने आविष्कार किया था, उस आविष्कार करते करते हमें चार प्रकार के कोल्स का we also understood that there are 4 types of coal. Okay, lignite, bituminous, anthracite, है ना. सो ये अलग अलग प्रकार के कोल्स के बारे में मालूम पड़ा. वुड के बारे में हमको मालूम पड़ा कि कैसे कैसे हम लोग अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल कर सकते हैं वुड को लेके, isn't it? So this is a resources, this is a developed resource. हमको इसके बारे में सब कुछ पता हो चुका है, ऑल राइट, और हमारे पास जो एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम लोग उसे निकाल भी सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक. आपको टर्म से ही समझ में आ रहा है. ओके, सी अंडरस्टैंड, रिसोर्सेज व्हिच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम. ओके, ये सारी रिसोर्सेज हमारे पास में स्टॉक में पड़ी हुई है. ओके, रखी पड़ी हुई है, मगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रखे पड़े रिसोर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सके. सो वी आर नॉट हैविंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O, है ना. पानी में से ऑक्सीजन और वाटर को अलग अलग सेपरेट करना लार्ज मासेस में हम लोगों ने उतनी अभी रिसोर्सेज फिलहाल अभी तक डेवलप नहीं करी है. उतनी टेक्नोलॉजी फिलहाल अभी तक हम लोगों ने डेवलप नहीं करी है. सो H2O एज यू कैन सी इट हियर, राइट. हाँ, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल पहला या अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. उसमें एक लास्ट वाला जो आता है वो है रिजर्व्स. ओके, आई एम सो सॉरी, reserves. So those resources which can be utilized with the help of existing technology but are kept reserved for the future requirements. वो सारी resources जो हमारी नीड्स को satisfy definitely कर सकते हैं, मगर हम लोगों ने उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए हमने उसको बचा के रखा है. दो रिसोर्सेज कैन बी कॉल्ड एज द रिजर्व्ड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल
कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले की तरह कोल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले की तरह हम लोग पेट्रोलियम और ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग अभी बड़े हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको पता चल गया कि ये सारी रिसोर्सेज आगे चल के शायद रहेंगी नहीं। सो वी हैव टू यूज देम इन अ रिजर्व्ड मैनर, इसलिए हम उसको बड़ा लिमिटेड इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हम लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया है। सो सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज रिजर्व्ड रिसोर्सेज। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। ओनरशिप के आधार पे हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच आर ऑपरेटेड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। वो सारी रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर इंसान की है या वो पर्टिकुलर इंसान ओन करता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंड को ओन करना, है ना, एक कार ओन करना, एक हाउस ओन करना, ये सारी वो रिसोर्सेज जो है ये एक उस बंदे की है जिसने ये जिसको ये ओन करता है। ऑलराइट, सो these are nothing but called as individual resources, जैसे कि प्राइवेट लैंड, प्राइवेट कार, प्राइवेट हाउस of a particular person can be called as individual resources. Next thing, इसकी मैंने एग्जांपल दिए थे कार और हाउस का। ओके, नेक्स्ट कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऑल दो रिसोर्सेज विच आर बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, है ना, दो रिसोर्सेज विच आर बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी, वो सारी रिसोर्सेज जैसे जो आपके पूरे समाज को बिलोंग करती है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कम्युनिटी रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक पार्क्स, टेम्पल्स, ट्रेन्स, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है बट ये एंटायर कम्युनिटी की है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, national resources, all those resources which are within the political boundary of a nation, like lakes, reserve forest, reserve parks, rivers flowing in the country, and oceanic boundary up to 12 nautical mile, that is 22 किलोमीटर, belonging to the nation, है ना। वो सारी रिसोर्सेज जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में आती है, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर में आती है, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट, हमारे रिवर्स, हमारा ओशियन, अगर हमारे कंट्री में समुद्र तट है तो वो समुद्र तट से लेके 22 किलोमीटर तक ये जो ओशन है ये हमारा ही ओशन होगा, राइट। सो दैट इज अगेन कॉल्ड एज ओशियनिक बाउंड्रीज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर उसे बोलते हैं 22.2 किलोमीटर्स, है ना। सो इस सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्सेज। क्योंकि देखो रिवर्स ये किसी पर्टिकुलर स्टेट की रिवर नहीं है, ये पूरे देश की रिवर है ना। फॉरेस्ट ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का फॉरेस्ट नहीं है, ये पूरे कंट्री का फॉरेस्ट है। अंडरस्टूड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ नेशनल रिसोर्सेज। ये सारी क्या है, ये एक प्रकार की नेशनल रिसोर्सेज है। या moving forward now, international resources. Okay, all those resources which are regulated by the international organization, these do not belong to any particular country. Example, sun, moon, oceans, like international water, etc. है ना। वो सारी रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड की है और वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है। फॉर एग्जांपल सन, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है। मून, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है। ऑलराइट, सिमिलरली इंटरनेशनल वाटर्स, 22.2 किलोमीटर के बाद में जो वाटर्स की जो सीमा लगती है, दैट इज द इंटरनेशनल वाटर, है ना। वो एक इंटरनेशनल वाटर है, आप वहां पे इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं ना। ऐसा दूसरा कोई कंट्री बोल नहीं सकता कि आप हमारे ओशनिक बाउंड्रीज के अंडर में हो आप, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल वाटर्स। ओशंस भी किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स, है ना। सो एज यू कैन सी इट हियर, मून बिलोंग्स टू द एंटायर वर्ल्ड, सन बिलोंग्स टू द एंटायर वर्ल्ड। दिस ओशंस, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ये पर्टिकुलर नॉर्थ अमेरिका का नहीं है, साउथ अटलांटिक ओशन किसी अफ्रीका या साउथ अमेरिका का नहीं है, साउथ पैसिफिक ओशन साउथ अमेरिका का नहीं है। अंडरस्टूड। इंडियन ओशन इंडिया का नहीं है। अंडरस्टूड। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये क्या है, सब इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल ओशंस है ना। ये सारे के सारे क्या है, इंटरनेशनल ओशियंस है। या सो इसी के साथ में हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो खत्म होता है। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड क्वाइट वेल। टुडे आई वाज लिटिल बिट फास्ट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, but then you can just pause the video and hear my words once again, and you can just go ahead with that. So thank you so much for watching this video. I'll be coming up with more beautiful content for you and amazing content for you so that you can learn more properly. मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करें. I'll be also coming up with some of the more advanced courses in particularly in social studies. तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर मी टू क्रिएट द वीडियोस फॉर यू ऑल. सो प्लीज़ go ahead and show some love to me and just subscribe to the channel. Comment in the comment section and let me know how my videos are. If you want some improvements in my particular teaching style, I will be doing that also. So thank you so much. See you all. Take care and love you all. Have a good time.